Hello students, welcome in HP Studies VA Dentist एग्जाम सीरीज। HP Studies आपके लिए बूस्टर MCQ सीरीज लेकर आया है। What to do? Confidence allows you to do it and practice develops confidence. So keep on practicing with us to gear up your preparations and leads toward the success. And for any query dots, consult our professionals on the following WhatsApp number 8278723715. Let's begin practicing. First question of today is, which of the following commission first decentralized the primary education? किस कमीशन के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन को फर्स्ट टाइम डिसेंट्रलाइज किया गया था? हंटर कमीशन, कोठारी कमीशन, मुदाइलर कमीशन, सेडलर कमीशन. Students, check your answer and at the end of video check your scorecard. Here right answer is option number A, Hunter Commission. Hunter Commission decentralized the primary education. पहली बार प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण हंटर कमीशन के द्वारा किया गया था. नेक्स्ट इज, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर. भारत में पहली ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टैब्लिश की गई थी? 1962, 1982, 1985, 2001. यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1982. फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज BRAOU. BRAU is Dr. B.R. Ambedkar Open University, Hyderabad, Andhra Pradesh. Next is, who emphasized that education should be a social process? किसने एम्फेसिस किया था कि एजुकेशन एक सोशल प्रोसेस होनी चाहिए? विवेकानंद, रूसो, डिवे, पेस्टोलॉजी. Here right answer is option number C. Dewey emphasized that education should be a social process. Next, for the guidance of teachers, they should take this by and by that would introduce new teaching methodologies to them. टीचर्स के गाइडेंस के लिए टीचर्स को कौन सा कोर्स लेना चाहिए ताकि वो न्यू टीचिंग मेथोडोलॉजी से इंट्रोड्यूस होते रहें? वोकेशनल कोर्सेज, टीचिंग कोर्सेज, रिफ्रेशर कोर्सेज, नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रिफ्रेशर कोर्सेज. फॉर गाइडेंस ऑफ टीचर दे शुड टेक रिफ्रेशर कोर्सेज by and by that would introduce new teaching methodologies to them. If you like the questions, then hit like button, share and subscribe to get all the notifications. Next is, in exams 75% marks should be allotted to. Exams में 75 marks कौन allot करता है? And remaining 25% should be given according to the performance and punctuality at school. Students, board and university, respective institute, none of these. Exams में 5% marks should be allotted to board and university. B option is the right answer. And remaining 25% should be given according to the performance and punctuality at schools. Next question. The statement of the Prime Minister Rajiv Gandhi that a new education would made so as to prepare Indian for the 21st century in the year. ये किस राजीव गांधी ने किस टाइम ये स्टेटमेंट दी थी? टू प्रिपेयर इंडियन फॉर द 21st सेंचुरी इन द ईयर. किस ईयर में दी गई थी ये स्टेटमेंट? 1996,
1985, 1987, none of these. 1985 में राजीव गांधी जी ने ये स्टेटमेंट दी थी, टू प्रिपेयर इंडियंस फॉर 21st सेंचुरी इन दिस ईयर. नेक्स्ट इज IRIC, which sponsor research project in education, is a unit of IRIC. IRIC stands for Education Resources Information Center. ये एक तरह से ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी होती है फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन. तो इसे कौन स्पॉन्सर करता है? NCERT, NCTE, UGC, all of the above. Here right answer is option number A, IRIC, that is Education Resources Information Center, is a unit of NCERT, National Council of Educational Research and Training. Next is the midday meal program for primary school was initiated with the view to. प्राइमरी स्कूल के लिए मिड डे मील प्रोग्राम किस व्यू को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया था? इन्वॉल्व कम्युनिटी, इंक्रीज एनरोलमेंट, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ दीज. हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिड डे मील प्रोग्राम फॉर प्राइमरी स्कूल वाज इनिशिएटेड विद द व्यू टू इंक्रीज एनरोलमेंट. बच्चों की संख्या इंक्रीज करने के व्यू को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था प्राइमरी स्कूल लेवल तक. नेक्स्ट इज आर्या समाज वाज फाउंडेड बाय. आर्या समाज किसके द्वारा फाउंड किया गया था? कबीर, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, नन ऑफ दीज. Most time repeated question. Here right answer is Swami Dayanand Saraswati founded Arya Samaj. Next is Indian Institute of Advanced Study is located at. Indian Institute of Advanced Study कहाँ प्रेजेंट है? धर्मशाला, चंडीगढ़, शिमला, सोलन. Right answer is option number C, शिमला. Indian Institute of Advanced Studies, also known as IIAS, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो शिमला में प्रेजेंट है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1965 में इसको स्थापित किया गया था ऑन ऑब्जर्वेटरी हिल. पहले ये जो बिल्डिंग थी एक बायस रीगल लॉज नाम से जानी जाती है बिल्डिंग. इट्स अ होम ऑफ वायसराय ऑफ इंडिया बिटवीन 1884 टू 1888. 1884 से 1888 तक ये भारत के वायसराय का होम था. उसके बाद इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में बदल दिया गया था 1965 में. तो ये कहाँ प्रेजेंट है? शिमला में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी रेकमेंडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. इनमें से कौन सी कमेटी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट को रेकमेंड करती है? यस, रेड्डी कमेटी, मल्होत्रा कमेटी, रामामूर्ति कमेटी, नन ऑफ दीज. इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज रेकमेंडेड बाय रामामूर्ति कमेटी. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. रामामूर्ति कमेटी ने ही POA, दैट इज प्रोग्राम ऑफ एक्शन रिव्यू ऑफ सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी रामामूर्ति कमेटी. 1990 में रामामूर्ति कमेटी का गठन किया गया था और इन्होंने ही रेकमेंड किया था इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम. नेक्स्ट इज द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन SSA एम्स एट. SSA का एम क्या है? SSA सर्व शिक्षा अभियान का मेन एम क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल,
Universalization of secondary education? None of these. Here right answer is option number A. Aim of SSA is universalization of elementary education. Elementary education को universalize करना, UEE. Next is the authorization for the withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India must come from इंडिया के कंसोलिडेटेड फंड से फंड करना किसके द्वारा ऑथोराइज किया जाता है? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. राइट नंबर डी, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑथोराइज withdrawal of funds from the Consolidated Fund of India. Next is, who was the head of drafting committee of third NPE? NPE, National Policy on Education. थर्ड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? DS कोठारी, KC पंत, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, all of the above. Yes, here right answer is option number C. Dr. K Kasturirangan was the head of drafting committee of third national policy on education. Students, आपके लिए यहाँ एक क्वेश्चन है. आपने बताना है कि थर्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन कब आई थी. ईयर ऑफ थर्ड पॉलिसी ऑन एजुकेशन. नेक्स्ट इज the weight of an object would be minimum when it is placed at the. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मिनिमम कब होगा? जब उसको कौन से स्थान के ऊपर रखा जाएगा? प्लेस्ड एट इक्वेटर, साउथ पोल, सेंटर ऑफ द अर्थ, नॉर्थ पोल. किस रीजन के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट मिनिमम होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम. इसका रीजन क्या है? अर्थ के सेंटर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है पुल फ्रॉम ऑल डायरेक्शन. हर डायरेक्शन से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगती है, जिसके कारण सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो मिनिमम रहता. नेक्स्ट इज, What is the new name of Ministry of HRD? Ministry of HRD का नया नाम क्या है? Ministry of Higher Studies, Ministry of Human Education, Ministry of Education, Ministry of Human Studies. Very important question. New name of Ministry of HRD is Ministry of Education. Ministry of Human Resource Development को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से बदल दिया गया है. नेक्स्ट इज, इन सर्टेन लैंग्वेज नेचर इज कोडेड एज MASUQE. हाउ इज फेमिन कोडेड इन दैट लैंग्वेज? एक लैंग्वेज में नेचर को मैस्यूक्यू की फॉर्म में कोड किया गया है, तो फेमाइन को किस फॉर्म में कोड किया जाएगा? फेमाइन के लिए क्या कोड रहेगा? यस, FZMHND, GANIOE, EALIME और EMILAE. अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखें तो नेचर में फर्स्ट लेटर N एंड इसका जो कोड है फर्स्ट लेटर M. M का जो प्रीवियस लेटर रहता है M, सेकेंड लेटर एज इट इज लिखा हुआ है, थर्ड लेटर इज T का प्रीवियस लेटर रहता है S, फोर्थ लेटर अगेन एज इट इज U, फिफ्थ लेटर R, और R से प्रीवियस लेटर क्या रहता है आपका Q, R. देन नेक्स्ट लेटर अगेन एज इट इज. अगर इसी फॉर्म में अगर हम फेमिन को देखें तो फेमिन को कैसे कोड किया जा सकता है? प्रीवियस लेटर
एफ से पहले आता है आपका ई, ए सेकेंड लेटर एज इट इज, थर्ड एम से पहले, सो इट्स एल, एल एम, देन फोर्थ लेटर अगेन सेम, एन से पहले एम, फिफ्थ लेटर सिक्स लेटर अगेन एज इट इज, सो इट्स एलिमे। सो हियर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के भी 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। आपने सीक्वेंस देखना होता है क्वेश्चन में, सीक्वेंस क्या है अल्फाबेट्स का, उसी बेसिस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट इज MOOC stands for MOOC stand for Massive Online Open Course, Massive Open Online Course, Massive Online Objective Course, none of these. What is MOOC? MOOC is Massive Open Online Course. Option number B is the right answer. MOOC एक ऑनलाइन कोर्स है जिसका एम है अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस बाय द वेब। मूक टर्म 2008 में कॉइन की गई थी बाय डेविड कॉर्मियर के द्वारा। एक ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो इट्स राइट आंसर इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्टार क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज। व्हाट विल बी पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NPE 2020? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 के अनुसार स्कूल एजुकेशन का पैटर्न क्या होगा? राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। पिछले कल हमारा क्वेश्चन था, हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर हम ओल्ड डेज के अकॉर्डिंग देखें तो वो थे आपके मौलाना आज़ाद। रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की फॉर्मेशन हुई है बाय चेंजिंग द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रमेश पोखरियाल। Thank you. If you like the video, then like, share and subscribe to get all the notifications. Keep on practicing.